Hi everyone, good evening. This is Sonali. So I'm back with another cocktail makeup look, very easy look. So yeah, I hope you guys are very excited to learn about this look. So talking about पंखुड़ी, पंखुड़ी is a great platform. आप लोग सबको ही जानते हो कि यहाँ पर हम लोग कितने अच्छे से हम लोग हर एक लड़कियां आराम से घर बैठकर easy looks आराम से अचीव कर सकते हैं. लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. आप कुछ भी मेकअप आराम से घर में बैठ के सीख सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, all of free. Okay, so let's get started with the work. So this is a very easy cocktail makeup look. As you know, wedding seasons are going on, not going on, but still it is going to come. Still, so this is a very easy look. कुछ looks है ना बहुत difficult लगता है, but it is not very difficult to do. So today what we are going to learn is ना कि बहुत ही simple सा halo eyes look करेंगे, which is not using so much of bold colors because I've already, as you can see, मैंने जो lip shade लगाया है ना बहुत ही bold shade लगाया है. So what I'm going to do is little bit of the subtle on the eyes. ठीक है, subtle यानी थोड़े से हल्के रंग के यूज करेंगे. ठीक है, हल्के रंग के colors यूज करेंगे. So I'm starting off with this palette. This is a Zozo My Glam palette. My Glam की ये eyeshadow palette है. This is very friendly. आप आराम से इसमें पर्स में कैरी कर सकते हो. You can go with this palette anywhere, कहीं भी जा सकते हो इस palette को लेकर. So I'm using this palette. Okay, starting off with the first step, which is of course the concealer. ठीक है, concealer पहले यूज करेंगे अपनी आंखों पे, which I'm using this one. Mamaearth की concealer है ये. ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपने आंखों पे लगाएंगे. आप चाहे जो भी आई लुक कर रहे हो, कुछ भी करो, whether it is a bold colors, you think that कि जैसे ब्लू शेड्स होती है, ग्रीन शेड्स होती है, which belongs to the cool tone family. Okay, कूल टोन फैमिली की क्या होती है ना कि वो थोड़े से डार्क टेक्सचर की होती है, तो आपको लगता है आप अपनी आंखों पे लगाओगे इट इज इजिली गोइंग टू शो. नो, बट स्टिल यू हैव टू यूज योर कंसीलर जस्ट बिकॉज वो आपके जो पाउडर्स रहते हैं ना उसको इंटैक्ट रखती है, अपनी आंखों पे ना बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, हिलती नहीं है. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज concealers on your eyes. Okay, I'm going to blend it very nicely. Make sure you're using a professional brush. Apart from that, जो भी brush market में आती है, like Amazon में मिलती है या फिर 200-300 की जो brush आते हैं ना, please do not use those. Make sure you're using the professional just because आपकी आंख है. ठीक है, these are your eyes and you need some proper soft brushes चाहिए. ठीक है, those are like ऐसी brush आपको find करनी है ना जो आपके आंखों को hurt नहीं करे. Okay, so I'm going to blend it very nicely using this brush. Okay, as I said earlier, I do not apply or pack with the loose powder. मेरे आंखों पे मैं pack नहीं करती हूँ just because I want the colors to be like very prominent on my eyes. इसीलिए मैं थोड़े से I just leave on as it is. जो भी concealer apply करती हूँ उसको मैं as it is leave on कर देती हूँ. ठीक है. Okay, starting off with the first shade. First shade should be like very light, which is going to be my base color. ठीक है, base color warm shades use कर रही हूँ. As you can know, ये जो रेड फैमिली की मैंने पहना हुआ है, आउटफिट पहना हुआ है, लिप शेड डाला हुआ है, these are like warm shades. ठीक है, warm फैमिली में आते हैं, तो of course I'm going to use little bit of the warm tone के shade use करूंगी. ठीक है, the first shade I'm using is this one. ठीक है, can you see this shade? I'm using this shade as a base on my eyelids. Okay, पहला फ्लफी ब्रश ले रही हूँ, अपने एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ किया and I'm going to apply it as a base. Now remember, अब ये पार्टी मेकअप कर रही हूँ, कॉकटेल मेकअप कर रही हूँ, बट थीम मेरी क्या है? हेलो आईज. ठीक है, हेलो आईज में क्या होते हैं ना कि यू हैव टू डू आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर्स डार्क होते हैं. ठीक है, दिस इज नॉट वन बेस कलर. वन बेस की कलर में क्या होते हैं ना, हम लोग एक शेड लेते हैं एंड वी जस्ट सिंपली ग्लाइड दोस कलर्स ऑन माय आईज. ठीक है, बट जैसे प्रीवियस सेशन में आप लोग को बोला था ना कि इनर कॉर्नर्स पे डार्क कलर्स यूज नहीं करते बेसिकली. ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, बट हेलो आईज इज समथिंग एल्स. ठीक है, हेलो आईज में क्या होता है ना, वी यूज लाइटर कलर इन द मिडल ऑफ द आईज. ठीक है, दिस इज अनदर टेक्निक व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू. सो आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ brown shade
on the outer V of my eyes. And guys, अगर कोई भी question हो related to makeup, whatever I'm wearing, whatever lip shade I'm applying, अगर कुछ भी question हो, just ask me in the comment section. Okay. Now I'm taking that same color and applying in inner corner of my eyes. ठीक है. Make sure you're using it very round. आप जो भी shade use करो ना, उसको बिल्कुल अच्छे से round shade में करो. ठीक है. Just like this. See. अभी क्या किया है? अभी कुछ भी नहीं किया है, जस्ट कलर्स को प्लेस किया है, इंटैक्ट किया है. ठीक है. इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है. सी, मैंने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है? आउटर कॉर्नर पे, अपने आउटर आईलिड्स पे एंड इनर आईलिड्स पे. दैट्स इट. अभी तक नेक्स्ट स्टेप हम लोग नहीं जाएंगे इसके बाद. ठीक है. ओनली दिस साइड एंड इनर साइड. दैट्स इट. नाउ आई एम कमिंग बैक टू द सेकंड आई. इस आंख में भी वही सेम चीज करेंगे, विच इज ऑन द इनर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे थोड़े से, एंड थोड़े से आउटर कॉर्नर. दिस इज वेरी इजी लुक. दोज वर लाइक वेरी बिगनर ना, जो भी बहुत बिगनर हो, जिनको मेकअप करना नहीं आता है, you can definitely do this makeup. This is very easy, you know, very easy. Let me show you how. Which eyebrow pomade did you use? Okay, the eyebrow pomade which I use, actually I did not use the pomade. I use the eyebrow powder. I have used powder. मैंने use किया है. Let me show you the powder. It is from Wet n Wild. Okay, I have used this powder. This is from Wet n Wild. Eyebrow kit है ये. आप ना ये आराम से use कर सकते. This is very affordable, you know. This is very affordable and very pigmented. So I have used this one. It is better, you know, जो भी बिगनर्स हो ना, तो उसके लिए ज्यादा बेटर होता है कि आप ब्राउ पोमेड नहीं, पाउडर से स्टार्ट करो. पाउडर्स आर वे मोर बेटर देन द पोमेड. पोमेड थोड़े से एडवांस वर्जन में आ जाते हैं. आईब्रो जेल्स जो होते हैं वो थोड़े से एडवांस वर्जन में आ जाते हैं. बट इफ यू आर अ बिगनर, गो फॉर द आईब्रो पाउडर. ठीक है. वो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा इजी होता है, बेटर होता है कैरी करने में. ओके. नाउ मैंने कलर्स को प्लेस कर लिया दोनों आंखों पे. कैन यू सी दैट? ओके. वेरी लाइट हैंडेड यूज कर रही हूँ. कैन यू सी वेयर आई होल्ड द ब्रश? बिल्कुल नीचे पकड़ रही हूँ, ऊपर नहीं पकड़ना है. यहाँ पे पकड़ना है. यहाँ कब पकड़ते हैं? जब आप कट क्रीज करते हो ना, यानी यू डीपली डूइंग इनसाइड, लाइक डिटेलिंग करते हो आंखों पे, तब जा करके आप यहाँ पकड़ते हो ब्रश. ठीक है. डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ ना, मुझे लाइट हैंडेड ब्रश यूज करना है. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम होल्डिंग द ब्रश हियर वेरी लाइट. ओके. Always remember one more thing, guys, कि never ever wash your brushes daily. Please do not brush your wash your brushes every day. It is going to destroy the bristles of the brushes. जो भी आपकी bristles होती है ना ब्रश की, वो बिल्कुल destroy कर देगा. It is not made to like wash. अगर आप डेली डेली करोगे ना, तो उसकी ये जो परत देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा हार्श होने लग जाएंगे. ठीक है. Because you don't know what kind of chemical you're using on the brush. Actually ये synthetic brushes है. These are like this. This is the synthetic one, and these are like the handmade brushes. So you don't know कौन सा कंपनी की कैसी brushes होती है. तो it is better to do not wash your brushes every day. Rather than आप क्या कर सकते हो, एक सिंपली क्लॉथ रख सकते हो जस्ट लाइक दिस, एंड जो भी कलर आपके ब्रश पे लगाना है ना, जस्ट रिमूव इट यहाँ पे. ठीक है. इस तरीके से हटा लो, या तो माइसलर वाटर डाल दो इस पे, माइसलर वाटर डाल के, एंड जस्ट रिमूव इट जस्ट लाइक दैट. ओके. आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ द फ्लफियर ब्रश. थोड़े से फ्लफियर ब्रश ले रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट वेरी नाइसली, because this is my base color, so I'm going to randomly blend it. कुछ डिफिकल्ट नहीं है. मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. शेड यूज किया है which is this one. See, this shade I have used. I hope I'm able to show you guys. So I have used this shade from my glam palette, and I'm going to blend it seamlessly.
ओके चलो यहाँ तक मैंने काम कर लिया। मुझे जो एक बेस चाहिए थी आंखों के लिए वो मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज on the darker side. So for that I'm going to use this palette. This is from iMagic, ठीक है। ये iMagic की palette यूज कर रही हूँ, थोड़े से darker shades यूज करूंगी। So I'm going to use this shade, which is this brown. Can you see this brown? I'm going to use this brown. So for that I'm going to use, उसके लिए मैं थोड़े से छोटे ब्रश पे जा रही हूँ, ठीक है। Can you see this brush? ठीक है, because मुझे inner corner पे and outer corner पे थोड़े डिटेलिंग पे जाना है, so थोड़े precision चाहिए मुझे काम पे, तो I am going to use this kind of brush, okay? So I am taking little bit of dark brown shade, can you see, dusting off extras and place कर रही हूँ, ठीक है, blend करने के लिए। जहां पे आपने place किया है ना बेस को, जस्ट वहीं पे आपको कलर को प्लेस करनी है, ठीक है। अंदर यानी बीच की जो जगह है, यानी मिडिल जो पार्टिंग है आपको इस एरिया की, यानी आपकी आईलिड्स की मिडिल पार्ट में, आईबॉल के जस्ट ऊपर, ये एरिया आपको छोड़ देना है, ठीक है। वहां पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है, आपकी आउटर कॉर्नर्स पे एंड इनर कॉर्नर्स पे काम करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट। सी nicely I have taken the color and उसको अच्छे से blend कर लिया, okay? Now I'm going to take that same color and I'm going to blend it inside on the inner corners, ठीक है। सेम कलर लूंगी। हमेशा याद रखना जो भी आप बेस कलर लगा रहे हो ना आंखों पे, उससे थोड़े से डार्कर होना चाहिए आपकी जब भी हेलो आइज करते हो, ठीक है। सी एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है। हेलो आइज में क्या होता है ना, एक्चुअली द टेक्निक विच वी कॉल्ड एज अ हेलो आइज, उसमें क्या होता है ना, आउटर्स एंड इनर्स में एक डेप्थ क्रिएट करते हैं विद मिडिल पार्ट। मिडिल में हम लोग एक अच्छी सी हम लोग लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सो दैट व्हेन लाइट फोकस ऑन योर आईज ना, तो वो बहुत अच्छा एक दोनों तरफ डेप्थ से एक बीच में आपको अच्छी सी लाइट फोकस करेगा ना, इट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल लुक, यू नो, बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपकी आंखों पे। हाय शुभा, हाउ आर यू? हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? ओके सो सी मैंने कर लिया। अभी बीच में कुछ काम नहीं करेंगे बिकॉज बीच में हम लोग दूसरे कलर को प्लेस करेंगे, ओके। तो कुछ भी नहीं किया है, इट इज वेरी सिंपल। अगेन आई एम रिपीटिंग, I have just used the base color, then I have used the brown color, ठीक है, brown outer and inner, okay, that's it। और कुछ अभी तक यूज नहीं किया है। कहीं पार्टी पे जा रहे हो ना, दिस इज द, यू नो, बहुत ही इजी लुक है ये वाली, आप लोग आराम से ये कर सकते हो। अगर किसी के पास वक्त नहीं होता ना, स्पेशली ऑन द वेडिंग सीजन्स, यू नो, वेडिंग सीजन्स में हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम लोग आई शेडो लगाएं, प्रॉपर वे में लगाएं, ये कलर मिक्स करें, वो कलर मिक्स करें, प्रिसीजन के साथ करें, किसी के पास वक्त नहीं होता, ना मेरे पास ना आपके पास, ओके। सो फॉर दैट यू आर गोइंग टू डू लाइक दिस, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी टाइम भी बच जाएगी, प्लस आप कुछ नए तरीके का कर भी लोगे, ठीक है। थैंक यू शुभा, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। ओके सी मैंने यहाँ पे भी डेप्थ कर लिया है अपना, ठीक है, क्रिएट कर लिया। नाउ गोइंग टू द इनर कॉर्नर। आपको कुछ काम नहीं करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, बस आपको आउटर एंड इनर में काम करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू डू, एंड you'll see how beautiful you are going to create the look. Okay, now I'm taking little bit of the fluffier brush, थोड़े से fluffier brush ले रही हूँ, so that जो भी extra crease line है ना, उसको मैं अच्छे से blend कर लूँ आंखों पे। I don't want to see any kind of crease line.
क्रीज लाइन जितना अच्छे से ब्लेंड कर लोगे ना उतना ही अच्छा आपकी आई लुक की इफेक्ट आएगी। ओके, सी आई हैव ब्लेंडेड यूजिंग दिस ब्रश। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट योर ब्रश। जो भी ब्रश आप यूज कर रहे हो ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट काइंड ऑफ ब्रश यू आर यूजिंग। इज इट गुड फॉर योर आईज और नॉट, इज इट गुड क्वालिटी और नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट मोर। डिफाइन इन सेंस मैं कलर जो मैंने पहले ही कलर यूज किया था वही वही सेम कलर मैं अगेन यूज कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज डार्क ब्राउन एंड आई एम डिफाइनिंग लिटिल बिट ऑफ द डार्कनेस ला रही हूँ कलर को लेकर। ओके, okay, inside and outside, that's it. This is very easy and very, you know, fast, जल्दी बन जाता है ये। Okay, so I'm done with the base। ये मेरी बेस रहेगी। अब हम लोग जाएंगे बीच में काम करने। ठीक है, उसके लिए what I'll take is little bit of mixture of this shade। ये shade, can you see this shade, and little bit of this shade, can you see this shade? So I'm going to mix both shade, create a good champagne color। You know champagne color। कभी भी always remember, जब भी आप आंखों पे glitters, shimmers या कुछ भी लगा रहे हो ना, there is a difference between the glitters, shimmers, the foils। ठीक है, these are the three kind of shimmers available, or you can say the glitters available in the market। ठीक है, glitters वो होती है ना जिसकी chunky particles मोटी होती है, थोड़ी thick होती है। ठीक है, the shimmers are like very fine। उसकी जो particles होती है बहुत ही फाइन होता है, एंड इट इज लाइक यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ ग्लू टू, आप शिमर लगाने के लिए आपको कोई भी ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और अब आती है फॉइल। फॉइल लगाने के लिए भी आपको ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फॉइल भी क्या होता है ना, वो आपकी आंखों पे इजिली चिपक जाता है, एंड उसकी भी जो पार्टिकल्स होती है ना थोड़े मोटे होते हैं, बट दे आर लाइक वेरी इजिली आपके आंखों पे वो सेटल कर जाते हैं विदाउट ग्लू। ठीक है, बट ग्लिटर्स ऐसे मोटे पार्टिकल्स के होते हैं ना जिसको आपको ग्लू लगाने की जरूरत पड़ती है, जस्ट बिकॉज उसकी जो पार्टिकल्स है ना बहुत चंकी टाइप की रहती है, एंड इट इज नॉट वेरी इजिबल, लाइक इजी से स्टिक नहीं होता है आपके आंखों पे। ओके, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक द ग्लिटर्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो द थिंग विच आई एम यूजिंग नाउ इज शिमर्स। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं अभी जो यूज करने वाली हूँ वो शिमर्स है, ग्लिटर्स नहीं है। ओके, ओके, so I'm going to use this। अब मैं इसको क्या करूंगी, बीचों बीच प्लेस कर दूंगी। ठीक है, just like this। Can you see how beautifully it changes the whole look? See, this is how you're going to apply। It is very easy, है ना? किसी को भी difficult लगा आई लुक में? So इसको मैं just randomly place कर रही हूँ। इसके बाद एक और step करनी है मुझे। इसके बाद पहले मैं अच्छे से इसको place कर लेती हूँ अपने आंखों पे। ठीक है, अभी यही सेम शेड लेकर what I'll do is ना little bit on the lower lash line लगाऊंगी in the front side। ठीक है, just like this, थोड़े से इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, अभी सेम कलर मैं दूसरे आंखों पे यूज कर रही हूँ, just like this। One more thing, remember guys, this is like अगर आपके पास वक्त नहीं है ना तभी आप जाकर के रैंडमली ये इसके आंखों पे इस तरीके से ब्रश से या अपने हाथों से इसको लगा सकते हो। ठीक है, इफ यू हैव टाइम, इफ यू वांट टू डू, अगर आपने काम में प्रिसीजन लाना चाहते हो ना, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज डू द कट क्रीज। ठीक है, मिडिल पार्टिंग का कट क्रीज कर लो, विच इज लाइक नॉट गोइंग टू टच योर आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर्स को टच नहीं करना चाहिए। डू द सेमी कट क्रीज एंड अप्लाई योर ग्लिटर्स। वो क्या होता है ना, वो ज्यादा प्रिसीजन देगा आपकी आंखों पे। ओके,
वो ज्यादा बेटर लगेगा एंड इट इज गोइंग टू लुक वे मोर प्रोफेशनल। जो भी यहाँ पे प्रोफेशनल हो ना, अगर आपको करना है तो आप उसी तरीके से करना, ठीक है। दिस इज फॉर दोज लाइक हु डोंट हैव एनी टाइम टू गेट रेडी। आप जल्दी से ये कर सकते हो, ये लुक आराम से कैरी भी कर सकते हो, किसी भी ओकेजन में कर सकते हो। एंड इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि इसी आउटफिट के साथ जाएगी या फिर इट इज गोइंग टू गो विद द रेड ओनली। ये आप येलो के साथ भी कर सकते हो, येलो आउटफिट के साथ भी कर सकते हो, आप ब्लू आउटफिट के साथ भी कर सकते हो, आप ऑरेंज आउटफिट के साथ भी कर सकते हो। यू आर गोइंग टू रॉक दिस लुक using this any outfit. Okay, so I have done with placing the glitter, sorry, shimmers and everything. I hope I'm able to show you guys how beautiful this looks. इतनी दूर तक किसी को भी अगर डाउट होती है ना, प्लीज जस्ट आस्क मी, okay? I'm going to use that same color on the inner corners as well. Inner corners के नीचे lower lash line में थोड़े से यूज करूंगी फ्रंट की तरफ, just because I want to give that. कॉकटेल मतलब क्या होता है, पार्टी लोग, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द नाइट, ठीक है। रात के वक्त का होता है, रात के वक्त हमेशा याद रखना यू नीड शिमर्स एंड ग्लिटर्स। ये सारी चीज आपके आंखों पे होना चाहिए, देन यू लुक लिटिल बिट ऑफ शिमर्स एंड ग्लिटर्स, इसलिए बिकॉज रात के वक्त का टाइम होता है ना, उसमें आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल लाइट्स क्या करता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है बहुत अच्छे से आपके आंखों पे, आपके फेस से, ठीक है। जो कि नेचुरल लाइटिंग में वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करता। इट विल लुक दैट यू हैव डन। नेचुरल लाइट में क्या हो जाता है ना, जब आप ये लुक करोगे नेचुरल लाइटिंग में, तो वो क्या हो जाता है ना कि बहुत ज्यादा हेवी लगने लगता है। इट इज नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट दैट, ठीक है, बिकॉज इट इज लाइक बहुत बड़ा नेचुरल लाइट इज लाइक सूरज तो बहुत बड़ा होता है ना, तो इट इज गोइंग टू क्रैश दैट लाइटनिंग, ठीक है। बट नेचुरल लाइटनिंग, अननेचुरल जो आर्टिफिशियल लाइटनिंग क्या होता है ना, वो कहीं कहीं से पड़ता है, लाइक कहीं कहीं से पड़ता है, लाइक कैमरा इज प्लेस देयर तो वहां से लाइटनिंग पड़ेगी, इफ द ट्यूबलाइट इज प्लेस देयर तो वहां से कहीं कहीं से पड़ता है, ऑल टोटल एरिया से नहीं पड़ता है। तो व्हेन कहीं कहीं से जो पड़ता है ना, तो बहुत अच्छा लाइटनिंग इफेक्ट क्रिएट करती है, एंड वो जो लाइट होता है आर्टिफिशियल लाइटनिंग की, वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो इट इज वेरी गुड। दिस आई लुक आप रात में जब करते हो ना, तो बहुत अच्छे से आपके लुक को एनहांस कर देगी, ठीक है। Okay, so I'm done with the shimmers. Now I'm going to take that uh, same color लूंगी वापस से अपने ब्रश पे, which is I have used on the outer corner. जो मैंने कलर यूज किया था ना ब्राउन शेड, मैं वापस से वही शेड यूज करूंगी, बिकॉज ग्लिटर्स के साथ उसको स्मर्ज करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिटर्स नहीं, शिमर्स के साथ स्मर्ज करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्लेंडेड दिखता है, प्रॉपर ब्लेंडिंग दिखती है आपके आंखों पे, ओके। सो आपने आईज से पहले लिप्स पे काम किया नहीं दिया? हाँ, ऑफकोर्स बात है, हाँ अभी नहीं किया। आई हैव ऑलरेडी डन विद द बेस, ठीक है। अगर आपको बेस के बारे में जानना है ना, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। मैंने बेस को ना पहले से प्रेप करके रखा था, बेस क्लियर कर लिया था, लिप्स क्लियर कर लिया था। द थिंग इज लेफ्ट इज ओनली द आई लुक, ठीक है। मैं सिर्फ आई लुक अभी कर रही हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या किया है स्टेप बाय स्टेप, आप मुझसे सेशन में पूछ सकते हो, मैं एक एक करके आंसर दे दूंगी आपको, ठीक है। क्या यूज किया है एज अ बेस, क्या लगाया है, आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द डिटेल, ठीक है। अभी मैंने इसको प्लेस कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ओके। नेक्स्ट स्टेप जो हमारी रहेगी ना, इज कवर इट विद द आईलाइनर, ठीक है। बिफोर दैट, आईलाइनर कवर करने से पहले आई विल बी यूजिंग ऑन माई ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स पे थोड़े से हाईलाइट करूंगी, ठीक है। आई ऑलरेडी यूज द मिडिल कलर, जो भी मैंने बीच में यूज किया था ना, वो मैंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू हाईलाइट लिटिल बिट ऑफ मोर, क्योंकि ग्लैम लुक है, सो इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ हाईलाइटिंग। सो मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कहाँ करते हैं, प्लीज वन मोर थिंग गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि ब्राउ बोन जब भी हाईलाइट करो ना, बहुत जन को देखा है मैंने, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लेते हो। प्लीज डू नॉट डू दैट, दैट इज अ वेरी रॉन्ग टेक्निक। आपको कहाँ हाईलाइट करना है, जहां आपकी आर्च हो, ठीक है।
आर्च यानी आपकी जो आईब्रोज की राउंडिंग होती है ना, वहां पर आपको हाईलाइट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट नीड टू हाईलाइट योर फुल आईज। ओके। सी, जहां पे आर्च है मैं वहीं पे लगा रही हूँ, दैट्स इट। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होती है वो सिर्फ आर्च पे ही आती है, यहाँ पे नहीं आती, यहाँ पे नहीं आती। ओके, आई एम गोइंग टू डू दैट सेम थिंग विद माई लेफ्ट आईज। ओके, अभी कर लिया इसको। थोड़े से इनर कॉर्नर्स पे दे देती हूँ कलर्स। उसके लिए थोड़े से फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ मैं। यस, आई वांट टू नो अबाउट द बेस। बेस के लिए आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। बेस जो मैंने किया है ना, वो एच डी किया है, नॉट वाटर प्रूफ बट स्टिल एच डी किया है मैंने बेस। ठीक है। सो आई एम पुटिंग इट इन द इनर कॉर्नर्स एंड यहाँ पे थोड़े से। ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स योर आईलाइनर्स। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से लाइनिंग कर लेती हूँ। बेसिक eyeliner जो मेरी सबसे फेवरेट है, विच इज दी Lakme one. I'm going to use that. सिंपल लाइनिंग दे रही हूँ, नो, नॉट सो ड्रामेटिक। So I'm not creating any kind of, विंग लाइनर और अरेबिक लाइनर, कुछ भी नहीं करी हूँ। मैंने जस्ट बाहर पे कॉर्नर पे जा करके उसको एज इट इज लीव कर दिया है। ओके, ओके, सो आई एम डन विद द लाइनिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, मैंने दोनों आंखों पे लाइनिंग कर लिया है आराम से। बेस में सबसे पहले क्या लगाना चाहिए, मॉइस्चराइजर या प्राइमर? ऑफ कोर्स सी बात है, आपको प्रेपिंग करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्राइमर एंड एवरीथिंग। आई वांट आस्क अबाउट विंग। विंग लाइनर्स इज लाइक, जब आप आउटर कॉर्नर पे जब आप डार्क कलर्स यूज नहीं करते हो ना, लाइक लाइट है आपकी, एक कलर सिंगल स्ट्रोक की कलर यूज कर रहे हो, देन यू कैन डू द नाइस ब्यूटीफुल विंग्स। बट हेंस आई हैव यूज्ड डार्कर कलर्स, थोड़े से डार्क शेड दिया है बाहर पे, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिंपल आईलाइनर। थोड़े से मोटे कर दिया एज पर माई आईज, थोड़े से मोटे आईलाइनर किया है, दैट्स इट, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने। ओके okay? तो इट इज लाइक, अगर विंग करती भी है ना तो वो विजिबल नहीं होगी।
सी, यहाँ पर मैंने करके छोड़ दिया, ठीक है, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी राइट आई आई का प्रॉपर नहीं बनता कॉज स्मॉल आईज, साइड से स्किन एंड लाइनिंग की वजह से प्रॉपर विंग नहीं बनता, तो क्या करना चाहिए? जब आप आपकी स्किन लूज है ना, जब भी आप विंग लाइनर लगाते हो तो हो सकता है कि वो जिगजैग या फिर वहां पे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती होगी, या फिर कुछ दिक्कत हो जाता है। सिमिलर टू दैट मेरी जो ये आईज है ना, आई हैव सेम प्रॉब्लम इन दिस आई एज वेल। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी जो स्किन है ना थोड़ी सी लूज है। फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज ना, टेक योर आई लाइनर, ठीक है, पहली बात लिक्विड यूज करना, ठीक है, बिकॉज अगर आप स्केच पेन्स यूज करते हो ना तो उससे क्या हो जाता है कि उससे आप प्रॉपर प्रिसाइज लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो। तो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इज ना, टेक योर लिक्विड लाइनर, लिक्विड लाइनर ही यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करना, हल्के से स्ट्रेच कर लेना। स्ट्रेच करने से क्या होता है ना कि आपकी जितनी भी स्किन यहाँ पे होगी ना, लूज स्किन जितनी भी होगी, वो आपको अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेच होने के बाद अप्लाई इट, ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैसे प्रॉपर विंग क्रिएट करें, हाँ, तो आई होप मैंने जिस तरीके से आपको बताया है आपको हेल्प किया होगा, है ना। बिकॉज बेसिकली पीपल व्हाट दे आर यूजिंग इज ना कि वो यूज करते हैं वो वाली जो स्केच पेन्स आती है, एंड दोज आर लाइक वेरी डिफिकल्ट, दोज हु आर हैविंग जिसकी आंखों में ना लूज स्किन होती है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है काम करने के लिए। तो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड यूज लिक्विड लाइनर्स, ठीक है, लिक्विड लाइनर्स यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा हो। आई नो विंग क्या होता है, मेरा प्रॉपर विंग नहीं बनता। ओके, प्रॉपर विंग नहीं बनता, इट इज वेरी इजी। ओके, लेट मी शो यू, ठीक है। व्हाट यू गोइंग टू डू इज ना, विंग के लिए आप क्या करोगे, ये जो ऊपर की आईलिड है एंड जो लोअर आईलिड्स है ना, वहां से एक लाइन निकालोगे। आई एम शोइंग यू वेरी सिंपल एंड थोड़े से छोटे में दिखा रही हूँ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय माय लुक। व्हाट यू गोइंग टू डू इज ना, जो आपकी ऊपर आईलिड्स है एंड जो मिडिल की नीचे की आईलिड्स है, उसके बीच से एक लाइन जस्ट लाइक दिस खींचोगे, ठीक है। आई होप आई एम गोइंग टू एबल टू शो यू। इस तरीके से लाइन खींचा, ठीक है, नाउ जॉइन इट जस्ट लाइक दैट, as simple as that. See, अब इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो या ऐसे ही छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको थोड़े से एक्सटेंड कर सकते हो, जस्ट लाइक थोड़े थोड़े करके बढ़ाते रहो इसको ऊपर की तरफ। अगर नहीं बनता है फिर भी, तो आप क्या करोगे ना, कंसील से उसको अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर दोगे कंसीलर से, तो वो इजिली अच्छे से हट जाएगा और आपकी विंग प्रॉपर बन जाएगी। ओके ओके, मैं स्केच ही यूज करती हूँ, दैट्स वाई स्केच यूज करने से जिसकी लूज लूज स्किन है ना, तो वो इफेक्ट करता है उसको, ठीक है, वहां पे आपकी प्रॉपर लाइनिंग नहीं बन पाती है। प्लस जिसकी लूज स्किन होगी आंखों के ऊपर, वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। ओके, तो अगेन आई एम शोइंग यू हियर अगेन, ठीक है, आप देख लो अच्छे से किस तरीके से करना है। आप यहाँ से एक लाइन निकालोगे विच इज मिडिल से, ठीक है, जो आपकी दोनों ऊपर की नीचे की जो है ना, वहां मिडिल से आप एक लाइन निकालोगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है, लाइन निकाला एंड नाउ जॉइन इट ऊपर से एंड फिल, नीचे में जितनी भी होगी ना उसको फिलिंग कर लो, दैट्स इट। सी हाउ ब्यूटीफुल विंग्स बन गया। इट्स इजी, यस एब्सोल्युटली। नाउ आई यूज, यस, एक बार ट्राई करके देखो आप लिक्विड लाइनर, कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल वी विंग्स बन जाता है। आप कोशिश करो जो आईलिड्स है ना, ऊपर की आईलिड्स एंड नीचे की जो आईलिड्स है, उसके बीच से लाइनिंग निकालो, सो दैट इट वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ द लाइन। ओके, इट्स यूजफुल, एब्सोल्युटली इट इज यूजफुल, ठीक है। अभी हम लोग ऊपर की काम हम लोगों ने कर लिया नाइसली। अगर आप यू वांट यू नो मोर प्रिसाइज, अगर आपको चाहिए एकदम क्रिस्प खड़ी लाइन चाहिए ना, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कंसीलर से
आप कट क्रीज वाली ब्रश से उसको हल्के से काट लेना, बहुत इजीली बच जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट दैट प्रिसाइज लुक। मुझे मोटा करके ऐसे विंग पसंद है, दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। ओके, now next thing what I'm going to use is little bit of the white kajal, as you know totally bold किया हुआ है, तो थोड़े से white kajal यूज करूंगी नीचे पे। एक और ट्रिक्स दिखाऊंगी आपको इसके बाद। इफ यू डोंट हैव कलर मस्करा आपके पास अगर नहीं है ना, तो आप किस तरीके से हैंडल करोगे चीज को, वो भी मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, इस सेशन में। सो द व्हाइट काजल विच आई हैव यूज्ड इज फ्रॉम द स्टारस्ट्रक। ठीक है, बहुत अच्छी काजल है, बहुत अच्छा इनका रेंज है काजल का, एंड इट इज वेरी पिगमेंटेड। ट्रस्ट मी गाइस, you need to buy this kajal. This is very good. This is very 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 good. Okay, okay, so I'm done with the kajal and everything. Now the main step, जो मेरी पर्सनल फेवरेट होती है, कि अगर आपके पास कुछ मस्करा नहीं है, कलर्ड मस्करा नहीं है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज टेक लिटिल बिट ऑफ योर लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक ले सकते हो, या फिर कोई भी, वाटरप्रूफ मत लेना। वाटरप्रूफ से क्या होता है ना, कि आपको नीचे की जो लैशेज है ना, उससे हटाना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इज लिटिल बिट ऑफ द नॉर्मल लिक्विड लिपस्टिक, जो कि इजली वॉशेबल है, वो वाली यूज करना है। तो आई एम हैविंग दिस वन, मैं ये शेड यूज कर रही हूँ, लिटिल बिट ऑफ। ठीक है, मैंने जो लिप्स की शेड लगाया है ना, उससे थोड़े से ऑफ में ये शेड ले रही हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ दिस शेड, द फ्लैट ब्रश। जिसके पास कलरफुल मस्करा नहीं है, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रैंडमली, या फिर ब्रश से नहीं कर रही हो तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी, लिपस्टिक से ही इस तरीके से रब करते जाऊंगी। मेक श्योर यू डूइंग इट वेरी प्रिसाइज on your work, very precise on your work, because it is going to destroy your, नीचे की लैश लाइन आपकी फिर खराब हो सकती है, तो थोड़े से सावधानी से करना। ठीक है, आप चाहे तो आईब्रो ब्रश से कर सकते हो। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस डायरेक्टली बिकॉज आई एम हैबिचुएटेड विद दिस टू डू। कैन यू सी, नीचे में कलर आप देख सकते हो, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। Yes, those who are having small eyes ना, they can definitely use white काजल या फिर न्यूड काजल। ठीक है, बिकॉज क्या होता है ना, एक इफेक्ट क्रिएट करती है, बहुत अच्छे से आपके आई लुक को क्रिएट करती है। लेट्स skip this one because this is going to take too much of time right now, so I'm going to skip it and use mascara instead. This is a very good mascara guys, affordable range में ना, बहुत अच्छी mascara है। Can you see that lift instant? I hope I'm going to able to show you that lift. So yeah, see, लिफ्ट दिख रही है। यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पे लगाया है। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ? इट इज सो गुड, दिस मस्करा इज सो गुड। वन मोर थिंग गाइस, अभी यहाँ पे देख रहे हो ना, थोड़े से दाग लगा है। मैंने क्यों छोड़ा है इसको? जस्ट बिकॉज आई वांट दैट थिंग टू बी ड्राई। ड्राई हो जाएगी, उसके बाद मैं उस चीज को हटाऊंगी। इट इज गोइंग टू कम ऑफ वेरी इजी। ठीक है, okay, talking about the base, whatever base I have done na is on the HD side. Okay, so for the base I have used the primer, Wet n Wild की primer use किया है मैंने, which is illuminating primer. Illuminating primer इसलिए use किया है ना, because I want that inner glow. Can you see that glowing face of mine? Little bit glowing areas. Of course ये बात है, जहाँ light पड़ेगी वहीं पे glow करेगी। ठीक है, तो
थोड़े से इल्यूमिनेटिंग प्राइमर यूज किया है। उसके बाद जाके आई कलर करेक्टेड माय फेस विच इज लाइक मेरी जहां पे भी डार्क आपकी जितनी भी डार्क साइड्स है ना एरियाज थे मेरे। सजेस्ट मी बेस्ट लिक्विड लाइनर अफोर्डेबल। बेस्ट लिक्विड लाइनर अगर आपको कलर में चाहिए गो फॉर द एनवाई बे, एंड इफ यू वांट टू यूज लाइक ब्लैक शेड्स में go for the Maybelline Colossal one. Those are like so handy and so easy to use. Okay, now okay, अब जहां जहां आपकी कलर करेक्शन की जरूरत है, नॉट कलर करेक्शन, जहां भी आपकी करेक्शन की जरूरत है, जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे अब वहां से कलर को उठाना है, जस्ट टेक योर सिंपल ब्रश जिसमें कंसीलर वाली ब्रश को लो और डैप डैप करो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। यू कैन सी दैट वॉट एवर ब्लैक थिंग इज जो भी आपके आंखों पे लगी है ना, आंखों सॉरी मस्करा से जो भी आई है ना लग के, वो इजिली रिमूव हो जाता है इससे। हाँ, जब वेट एंड वाइल्ड, जब वेट हो तब स्प्रेड हो जाता है। एग्जैक्टली exactly. जब वेट होती है ना वो स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए वो सूख जाएगी तब जा करके आप उसको इजिली रिमूव कर दो। सी, नाइस एंड स्मूथ। सो आई एम डन विथ माई लुक। सो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो भी यूज किया है। सो बेस के लिए बेसिकली मैंने जो प्राइमर यूज किया है विच इज फ्रॉम द वेट एंड वाइल्ड इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, जस्ट बिकॉज आई वांट दैट ड्यूई एंड शाइनी लुक ऑन माय फेस। उसके बाद जाके कलर करेक्शन किया है, कलर करेक्शन के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज किया है। देन आई हैव यूज्ड प्रेप ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ था विच आई हैव used my skincare routine which is from the Laneige। तो Laneige से मैंने पहले ही मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर यूज कर लिया था। उसके बाद जाकर I have used the setting spray little bit at that time to set my face and everything। उसके बाद जाकर I have used the primer करने के बाद I have used the color correction करने के बाद I have used the Maybelline सुपर स्टे। ठीक है, सुपर स्टे यूज किया है, नॉट फिटमी इज द मीडियम कवरेज फाउंडेशन। आई हैव यूज्ड द सुपर स्टे हाई कवरेज फाउंडेशन ऑन माय फेस, एंड देन उसके बाद जा करके आई हैव यूज्ड ऑल द क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट पहले यूज कर लिया, उसके बाद उसको मैंने लूज पाउडर के साथ सेट कर लिया। ठीक है, दैट्स इट। आई हैव यूज्ड द ब्लश ओवर हियर, ब्लश थोड़ी सी यूज किया है, पाउडर ब्लश यूज किया है। देन आई हैव यूज्ड द पाउडर हाइलाइटर, नथिंग क्रीम बेस्ड कुछ भी यूज नहीं किया है मैंने। So I have used everything on my face, base complete करने के बाद, and this is the final result. I hope you have liked this look. Let me get closer to show you how beautiful this looks. Okay, so this is the party cocktail look, and always remember guys, एक मैं आप लोग को हाईलाइटिंग टेक्निक बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको हाईलाइटिंग करना है। Always remember you need to have this fan brush with yourself. Fan brush लो, this is the part of your, यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है आंखों की जस्ट नीचे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे दूसरी स्टेप आपकी नोज में। बहुत जन क्या करते हो ना, नोज को पूरे ऐसे से कवर कर देते हो, प्लीज डू नॉट डू दैट। नोज को पूरे इस तरीके से रगड़ते नहीं है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग टेक्निक यू डू। ठीक है, आपको कहाँ हाईलाइट करना है, आपके नोज के टिप पे, आपके ब्रिज ऑफ योर नोज। ठीक है, यानी दोनों आंखों के बीच में, यहाँ पे, दैट्स इट। और कहीं करना है। ठीक है, नोज का काम खत्म। आपको थोड़े से क्यूपिड बो पे यूज करना है योर चिन एरिया, एंड ऑफ कोर्स ये बात है दिस, यानी ये जो आईब्रोज देख रहे हो ना, ये दोनों आईब्रोज के थोड़े से ऊपर एंड यहाँ से थोड़े से ऊपर, दैट्स इट। this is the areas you are going to highlight, and this is the proper way to highlight your face. Okay, so I'm done guys. I hope you have liked the makeup look. Let me see some comments. पहले मॉइस्चराइजर देन प्राइमर, ऑफ कोर्स बात है, पहले मॉइस्चराइजर करना है, उसके बाद जाके आपको प्राइमर करना है। प्रेपिंग पहले करना है, दैट इज प्रेपिंग मतलब क्या होता है, आपकी जो बेसिक स्किन केयर रूटीन होती है। अगर दिन में अगर मेकअप करके कहीं जा रहे हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इज फर्स्ट योर टोनर। आप क्लेंजिंग कर लो, अपने फेस वॉश कर लो। अगर आपकी ड्राई है, यू नो रूटीन इज लाइक वेरी
सबके स्किन केयर यानी सबके स्किन के हिसाब से अलग अलग रूटीन होती है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई है तो अलग रूटीन जाएगी, ऑयली है तो अलग जाएगी, कॉम्बिनेशन है तो अलग जाएगी, ठीक है। सेंसिटिव है स्किन आपकी, देयर आर 5 टाइप ऑफ स्किन टाइप्स, है ना। आप लोगों को 5 टाइप्स ऑफ स्किन टाइप्स आप लोगों को पता ही होगा कि 5 वेज होते हैं स्किन केस, ठीक है। तो ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए यूजुअली प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेम जाते हैं, बट ड्राई सेंसिटिव के लिए अलग अलग जाएंगे, एंड जो नॉर्मल है उनके लिए कुछ भी चलता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज योर क्लेंजिंग, क्लेंजिंग कर लो। उसके बाद जा करके अपने टोनर करो, वेदर इट इज इन द स्प्रेड को टोनर या फिर अपने टोन कर लो अपने स्किन टाइप के हिसाब से, ठीक है। आपने कर लिया, उसके बाद जा करके आपको क्या करना है, अपने मॉइस्चराइजर यूज करना है। अगर ड्राई है यूज द हाइड्रेटिंग वन, ऑयल बेस्ड वन। अगर आपकी ऑयली है स्किन तो आप वाटर बेस्ड यूज करोगे, जेल बेस्ड यूज करोगे, जो कि सिर्फ पानी आपके चेहरे पे प्रोवाइड करेगा, यानी वाटर प्रोवाइड करेगा। जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो ऑलवेज रिमेंबर, जो पीछे में क्रीम में कोई भी क्रीम होगा, अगर ऑयली और कॉम्बिनेशन के लिए खरीद रहे हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर पीछे में एक्वा या तो ग्लिसरीन लिखा होगा, ठीक है। दैट इज फॉर द ऑयली स्किन एंड द कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, ठीक है। पर्पल करेक्टर किस पर्पस के लिए होता है? पर्पल करेक्टर उसके लिए यूज होता है जिसकी रेडनेस होती है, ठीक है। रेडनेस होती है थोड़े फेस पे, उसके लिए पर्पल करेक्टर यूज किया जाता है। सेरम कब यूज करते हैं? बिफोर प्राइमर और आफ्टर प्राइमर। सेरम को आप बिफोर प्राइमर यूज कर सकते हो एज अ स्किन केयर, ठीक है। प्रेप में भी यूज कर सकते हो, बट जिसकी ड्राई स्किन होती है ना, व्हाट दे आर डूइंग इज आप फाउंडेशन में भी सेरम यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो ग्लाइडिंग है चेहरे पे वो बहुत इजीली से होती है। प्रेप में भी यूज कर सकते हो और जब मेकअप कर रहे हो तब भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज लाइक डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप, किस टाइप की आपकी स्किन टाइप है। अगर आपकी ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, स्किप कर दो, क्योंकि ज्यादा सेरम लगाओगे, ज्यादा प्रोडक्ट लोगे, उतनी ही केकी लगेगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी आपकी मेकअप, ठीक है। सनस्क्रीन कब यूज करना चाहिए? सनस्क्रीन आपको जब आप मॉइस्चराइजर कर लो, मॉइस्चराइजर करने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डे मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाओ, उसके ऊपर आपकी मेकअप जाएगी, ठीक है। यानी कि मेकअप कर लो उसके ऊपर सनस्क्रीन नहीं जाती है, पहले मॉइस्चराइज कर लो, मॉइस्चराइज करके सनस्क्रीन लगाओ, देन योर मेकअप, देन कम्स योर मेकअप, ठीक है, आफ्टर दैट। ओके गाइस, सो एनी मोर क्वेश्चंस? So I hope you have liked this look, this cocktail party look. आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इस तरीके से और लोग देखना चाहते हो डेफिनेटली मुझे चेकआउट करते रहना पंखुड़ी ऐप, तो आपको डिटेल्स मिलते रहेगी इसके रिलेटेड। ओके ओके गाइस, सो बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड यस, बाय बाय। डेफिनेटली दोज हु आर गोइंग टू ट्राई दिस लुक, आज पंखुड़ी को आप जा करके डेफिनेटली टैग कर देना, उनको मेंशन कर देना, सो दैट वी कैन सी योर लुक्स कि हाउ यू हैव क्रिएटेड। ओके, तो आप डेफिनेटली इस लुक को अगर ट्राई करते हो ना, तो आज पंखुड़ी को इंस्टाग्राम पे जरूर से जरूर आप टैग कर देना अगर इस लुक को क्रिएट करते हो, ठीक है। ओके, कैन आई डाउनलोड? What are you going to download? Yes, you can definitely download the Pankhudi app. There is an application on your app store or Play Store. Application है Pankhudi, आप definitely उसको download कर सकते हो. You're going to learn a lot of things. Trust me, you're going to learn a lot of things in free of cost. Okay? चलो, bye bye guys. Have a nice day and do take care. Do take good care of yourself. Okay? Bye bye.